Today, our guest Ruchi Ruhatia. She's a multifaceted personality, a great artist, a great leader, and not only this, she's a bibliophile who loves reading books. और उनका इंटरेस्ट आज हम समझेंगे, उनका पैशन जो है वो भी हम लोग समझेंगे और हमको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इस जर्नी में आए हैं, कैसे वो आर्टिस्ट बने हैं और अपने पैशन को कैसे परस्यू किया है। एंड नॉट ओनली दिस, शी इज अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इनरव्हील क्लब और वो एक बार प्रेसिडेंट नहीं, वो 2 बार बन चुके हैं। अभी इस साल भी उनका ही टेन्योर है। शी इज अ president of Innerview Club of Akola. Let's begin with your art. And as I got to know, at the age of 27, you started painting. So how did you pursue your interest? It's a very interesting story I like to share. So, till the age of 30, I've never touched a paintbrush. बचपन से बहुत इंटरेस्ट था, लाइक एवरी अदर ईयर आई टू लाइक ड्राइंग, आई टू लव स्केचिंग। मैंने पेंसिल वर्क फिर भी किया था बचपन में, बट ओनली टिल यू 5th-6th स्टैंडर्ड एंड देन यू गेट बिजी विद योर स्टडीज। सो उसके बाद कभी नहीं किया। आई वाज वेरी गुड विद माय स्टडीज, सो आई वाज कंसंट्रेटेड ऑन माय स्टडीज। फिर आफ्टर गेटिंग मैरिड, आफ्टर हैविंग द फर्स्ट चाइल्ड, आई वाज फीलिंग सो लॉस्ट इन माय लाइफ। आई वाज फीलिंग कि यार इतना पढ़ लिखने के बाद में व्हाट एम आई डूइंग। आई वाज लिटरली फीलिंग लाइक अ काउ आई एम फीडिंग द चाइल्ड and I'm at home all the time. I'm not using what I've studied. So there was this phase where I was feeling really lost. So मैंने सोचा I want to do something for 1 hour in my life जो मैं खुद के लिए करूँ। I was taking care of the baby, I was taking care of the family, I was trying to adjust also in the new family, but there should be something that I do for myself for 1 hour. तो actually सोचा ही नहीं कि क्या, मतलब it was not something that I was very thought of कि मुझे drawing करना है या मुझे painting करना है। बस कुछ करना है, 1 घंटे के लिए निकलना है, and I want to give that 1 hour to me. So I decided to start painting. My father-in-law told me, जो करना है आप करो, आपकी जो इच्छा है, you just tell us what you want to do. I said उन्होंने बोला मुझे ड्राइंग करना है। I did not know where I will go learn. सब कुछ सारा वर्किंग बाद में हुआ, बट द मेन it started with the intention of moving out to do something for myself. Great. But yes, after I joined painting, I was enjoying that 1 hour so much. मतलब इतना फ्री लगता था वो 1 घंटा खुद के लिए कुछ करने में। It changed so much, like 1 घंटा I was just going learning basic drawing जो अभी छोटे बच्चे करते हैं, मैं वैसे ही ड्राइंग सीख रही थी। उसके बावजूद इट फील्स टू फील कि मैं घर पे आके आई एम गिविंग 200% फॉर माय फैमिली आल्सो, फॉर माय किड्स आल्सो, बिकॉज दैट 1 hour वाज लाइक अ रिचार्ज फॉर मी। लर्निंग ड्राइंग और पेंटिंग वाज लाइक अ रिचार्ज। तो घर पे आने के बाद माय प्रोडक्टिविटी गॉट बेटर, सो आई ऑलवेज होल्डेड ऑन टू पेंटिंग। अभी तो जैसे पता चला कि ऐसा क्या स्पार्क हुआ कि उसमें आपको इंटरेस्ट आया। सो अब मुझे ये जानना है कि हाउ हैज इट शेप्ड योर लाइफ सिंस? डेफिनेटली आर्ट शुरू तो सिर्फ एक एस्केप के लिए किया था, बट उसके बाद आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस सो मच। एंड about talking about how life changed after that, it has changed so much in immeasurable ways. Of course, I cannot tell you that, because I'm not earning through my art, but it's changed my life in immeasurable ways that you experience life with more depth. Like there is a saying कि when you live normally, you live on the surface, and when you live through art, you live with a lot of depth. True. So since I started my art journey, I started understanding life in so many other colors जो आप पहले बहुत superficial लगता है। After pursuing arts, I started enjoying my life with a lot of depth. Like I enjoy beauty around me much better. True. और ये मुझे ना पहले पता नहीं था रुचि। When I started studying psychology and when I learned the art therapy, then only I got to know कि art क्या चीज़ है। Like art can heal. There is one more thing I will like to say in the interview, that I was like after marriage मैंने शुरू किया। I was painting one day and my father-in-law, like grandfather-in-law, he came and he saw my sketching and he was very happy. And then he's a doctor, he's a cardiologist himself, and he said because of this art now you'll never get depressed in life because art will always give you strength. दिखने में ये सिर्फ एक पेंसिल वर्क लगता है या ये कलर वर्क लगता है, and I was not a very big artist that time also, but still he said that because of what you're doing, your art journey, you will never feel depressed. True. And that time I felt like ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि ऐसे इतना इफेक्ट आएगा आर्ट का, but I felt that in my life because of arts I've overcome all my difficulties with
with a lot of happiness. I never felt depressed in life because I was always into arts. Very good to know. So Pinky, this Wow. is the art I recently made. ये हमने एक कंपटीशन के लिए बनाया था, मैंने हमारे क्लब का एक कंपटीशन था. Beautiful. So the topic of this painting was स्त्री के स्वाभिमान की गूंज. स्त्री के स्वाभिमान की गूंज. तो ये टॉपिक था, तो उस पर मैं सोचती थी मैं क्या बना सकती हूँ. यू कैन मेक अ हैप्पी फीमेल, यू कैन मेक लाइक अ पर्सन, अ फीमेल हु इज जस्ट एक्सट्रीमली फ्री. बट मुझे ये नहीं करना था. व्हाट आई स्टार्टेड फीलिंग इज कि फेमिनिटी को बहुत टॉक्सिसिटी से लिया गया है. सो आई वांटेड टू शो अ वेरी डोसाइल फीमेल who has that feminine energy. आजकल फेमिनिज्म के चक्कर में ना people got females have started imbibing very masculine qualities in them. So I wanted to show a very feminine female, but उसके साथ में कैसे वो अपना स्वाभिमान दिखाती है. So the message I wanted to pass across with this painting was, you can see Saraswati in this painting holding a veena. That represents education in females. So once a female is educated, उसके स्वाभिमान के लिए उसको गरजना नहीं पड़ेगा. लाइक शी हर स्वाभिमान और हर सेल्फ एस्टीम will shine through her education. She will not have to shout on people, she will not have to fight for her respect. Her education will do all the working, and this I've experienced in life, that if you're educated, everything else follows you. And by education I definitely don't mean that you need to earn money. Of course you don't need to earn money. If you do it, that's great. If you don't earn money with your education, but still अगर आप में knowledge है तो आपकी self esteem के लिए आप definitely better कर सकते हो. So that was the message, and I also got first prize all over India for this painting. Wow, congratulations. Yeah. Wow, रुचि, क्या ब्यूटीफुली तुमने इतना अच्छा आर्ट बनाया है. ये really I don't think I'm a very big artist. Such a beautiful piece, and the story behind that is really insightful. जो मेन पार्ट है रुचि का, जो हमारे क्लब की प्रेसिडेंट है, she is the charter president of Innerville Club of Akola Queens. So I would like to ask you रुचि कि आपका उसमें इंटरेस्ट कैसे आया. आप इतने छोटे थे, न्यूली मैरिड थे, तो आपको कैसे लगा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है? That is true. मतलब ये तो actually God gift था. It was not my decision to become the president. जो सीनियर्स थे क्लब के, उन्होंने डायरेक्टली अनाउंस ही कर दिया that I will be starting this club. उन्होंने पूरी सपोर्ट की. उनके सपोर्ट के बिना इट वाज नॉट पॉसिबल. एंड द बिगेस्ट पार्ट वाज, मैंने प्रेसिडेंटशिप की ओथ ली और यहाँ पे आई वाज प्रेग्नेंट द सेम डे. आई बिकेम प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड. बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. 6 महीने का मेरा टेन्योर था शुरू में द फर्स्ट टाइम, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एंड क्लब का जो कॉन्सेप्ट है वही अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, दैट इट इज सर्विस, चैरिटी एंड फ्रेंडशिप. तो देयर इज नो स्कोप फॉर नेगेटिव फीलिंग्स फॉर द क्लब. तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन द एंड. बट फिर ब्रेक लग गया ऑफ कोर्स, बट आई विल नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द क्लब. इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सीनियर्स ऑफ द क्लब. उन्होंने मोटिवेट किया हमें एक न्यू जन क्लब स्टार्ट करने में, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल थॉट. तो इनरव्हील में आप कौन से कैसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, क्या काम करते हैं? सो इनरव्हील क्लब जो है वो इट इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में इसके क्लब्स है, हर सिटीज़ में है. और उसके 2 मेन मोटिव्स है. एक है चैरिटी, कि आप जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी को बेटर कैसे कर सकते हो आप एक कलेक्टिव ग्रुप के तौर पे, और फ्रेंडशिप के जो लाइक माइंडेड लोग हैं आप उनसे जुड़ते हो, उनसे फ्रेंडशिप करने का आपको मौका मिलता है. सो ये दो मेन मोटिव्स हैं. इस साल जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट किए कि एक लड़की की हमने वेडिंग का पूरा खर्चा उठाया था. हमने स्कूल में डेस्क बेंचेस दिए हैं. हमने अभी गर्मी में वाटर बड़े बड़े मटके हमने एक वृद्धाश्रम में दिए हैं. तो इस टाइप के बहुत सारे हम चैरिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं. लड़कियों की एजुकेशन, हमने 2-3 लड़कियों की एजुकेशन इस साल स्पॉन्सर किए हैं. You do such work in Innerville, and I am also vice president with her this year. और आपने इतने साल के बाद फिर से प्रेसिडेंटशिप कैसे लिया? So again, और ये भी क्लियर करना कि लोगों को डर क्यों है प्रेसिडेंटशिप लेने में. हाँ. So again जैसे लाइफ में आफ्टर किड्स देयर वाज अ बिग स्टैग्नेंसी के फैमिली तो बहुत अच्छा, पर्सनल फ्रंट पे बहुत अच्छा चल रहा था, बट यू फील इनकम्प्लीट, यू वांट टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ. तो हमारे पास प्रेसिडेंट आए विद दिस अपॉर्चुनिटी दैट रुचि, यू टेक द प्रेसिडेंटशिप बैक, द क्लब नीड्स यू अगेन. सो आई वाज वेरी हेजिटेंट इन द बिगनिंग कि नहीं, मुझे नहीं करना है. आई हैव डन इट वंस एंड आई डोंट वांट टू गिव वन मोर ईयर. एंड आई हैव स्मॉल किड्स आल्सो राइट नाउ.
बट उनका थोड़ा था इंसिस्टेंस कि नहीं आप करो, यू द क्लब नीड्स यू, एंड आई थिंक आई हैव टू बी ग्रेटफुल ओनली टू हर दैट शी फोर्स्ड मी, बिकॉज आफ्टर मैंने क्लब का प्रेसिडेंटशिप लिया तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है उस चीज का कि आप एक फैमिली लाइफ में कंसाइज हो जाते हो आफ्टर हैविंग किड्स। आई हैव मूव्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिडेंटशिप। और तभी भी मुझे, जब मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया तभी भी मुझे लगता था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है ये करने की, और अब सेकेंड टाइम लिया तभी भी मुझे लगता था कि नो आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस। बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यू शुड नेवर बी स्केयर ऑफ टेकिंग लीडरशिप रोल्स, क्योंकि जब आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाते हो तो लोगों का, जो आपके मेंबर्स होते हैं उनके भरोसे से ही आप जीत जाते हो। अगर आपके मेंबर्स जिनके आप लीडर बनते हो किसी कंपनी में या किसी एनजीओ में, अगर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो उनके ट्रस्ट से ही आपको एनर्जी आ जाती है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप सब कुछ कर लेते हो सब। तो आगे भी किसी और कोई भी फीमेल अगर किसी लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहती है, हमारे क्लब में भी मैं ये मैसेज पास अक्रॉस करना चाहूंगी कि डोंट बी स्केर्ड ऑफ बिकमिंग अ प्रेसिडेंट या टेकिंग लीडरशिप रोल्स, बिकॉज वो करने से आप में जो स्ट्रेंथ कभी नहीं थी वो भी आ जाएगी, दूसरों की स्ट्रेंथ की वजह से। जो आपको देखते हैं एक पोजीशन पे, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से आप में वो स्ट्रेंथ हमेशा अपने आप ही आ जाती है। How do you keep your team motivated and maintain positivity within the club? And what legacy would you leave as a president? So I'll answer these questions in points. So first question, how do you keep your team motivated? First of all, you need to know why a particular member has joined the club. उन्होंने क्लब किस इंटेंशन से, मतलब उन्होंने पोस्ट किस इंटेंशन से लिए, वो अगर सेटिस्फाई हो सके तो वो सेटिस्फाई। किसी की इच्छा होती है सही में समाज सेवा करने की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस दो। किसी की इच्छा है कि हमें फ्रेंड्स बनाने, तो उन्हें उस टाइप का जॉब दो कि जो फ्रेंड्स में बनाने में ज़्यादा अच्छे हैं। तो इंसान की जो क्वालिटी है वो देख के उसे रोल दे तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हैं। सेकेंडली, एज अ गुड लीडर यू हैव टू जस्ट आपको ये फील करवाना होता है कि आप करो, हम आपके साथ में हैं। अगर आप उनको पूरा दे देंगे कि नहीं आपको ही करना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, दे डोंट फील मोटिवेटेड देन। और स्पेशली एक एनजीओ में तो यही होता है, बिकॉज आपको फाइनली यू नॉट गेटिंग पेड टू डू वॉट यूर डूइंग। आप एक एज अ चैरिटी, एज अ सर्विस ही कर रहे हैं। अगर आप कोई पोस्ट भी ले रहे हैं, उसमें जितना भी समय दे रहे हैं, तो उन्हें ये लगना चाहिए कि हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, या मुझे अकेले नहीं करना है, मेरी प्रेसिडेंट है मेरे साथ में वो एक चीज़ करने में, तो दे विल फील मोटिवेटेड। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन के लेगेसी, क्या लेगेसी छोड़ना चाहेंगे? तो लेगेसी तो वही है कि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए कि कोई भी आके यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ पे दे विल गेट फ्रेंड्स, दे विल गेट अ चांस टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स। सो क्लब में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, हमेशा एक एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर बना रहे, वो हमारी हमेशा इच्छा रहेगी। क्योंकि यू हैव बीन वेरी एक्टिव विद द क्लब, तो हमारी तो यही इच्छा रहेगी कि क्लब में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, कि किसी को भी कोई चीज़ करनी तो आगे आ सके, आइडियाज़ लेके आ सके, और टीम हमेशा रहे कि नहीं हम कुछ आइडियाज़ लेके आएंगे तो हमारी टीम हमें हेल्प करेगी। कमिंग बैक टू द पॉजिटिविटी क्वेश्चन के क्लब में पॉजिटिविटी कैसी बनाई जा सकती, तो दैट इज़ माई पर्सनल motto also, because I live in a very big joint family, कि never indulge in loose talks, gossips about anybody. You hear when you move out, क्लब में भी आप निकलते तो आप किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ सुनेंगे, बट उसके बारे में आगे वो बात आगे करना जरूरी नहीं है। यू कम हियर के सर्विस करने आए हैं, फ्रेंडशिप करना है, बस उतना करिए। फिर किसी के बारे में एक्स्ट्रा बात करेंगे आप, और फिर वो बात उसके पास किसी और रूप में पहुंचेगी। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिफ्रेन कि हम किसी के बारे में कुछ बात नहीं करें, काम करें, अच्छे हंसे खेले और वापस घर जाए। किसी को रियल नहीं लगना चाहिए कि हम क्लब में आए तो हमारे लिए कोई कुछ नेगेटिव बातें हो रही है या क्लब में लोग गॉसिप कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी। तो उससे पॉजिटिविटी हमेशा, जहाँ पे भी जिस भी एटमॉस्फेयर में आपको ये लगेगा कि यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, मैं जो चाहे वैसे पहन सकती हूँ, जो चाहे वैसे आ सकती हूँ, कोई मेरे बारे में पीठ पीछे बात नहीं करेगा, यू विल ऑलवेज फील वेरी कंफर्टेबल। तो वही माहौल हमें क्लब में भी देना है कि हमें किसी के लिए गॉसिप नहीं करना है, नेवर, एंड किसी के लिए बैक बिचिंग नहीं करना, वी शुड नेवर इंक्रीज बैक बिचिंग। मदर्स डे जो बहुत पास में है 11 मई को, और ये जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद मदर्स एवरीवेयर? I like to share that being a mother is the greatest job in the whole world, because आप एक इंसान को पूरा, एक इंसान आप पे डिपेंडेंट है, आप उसकी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हैं। तो इवन आई टुक टाइम, लाइक आप जब व्हेन यू कंसीव अ बेबी यू आर आल्सो अ चाइल्ड, but I have realized this with my journey in motherhood, that motherhood gives you immense power, immense responsibility.
एक काम जो ज़रूर हर मदर कर सकती है वो ये है कि स्टे पॉजिटिव. When you stay positive, the whole family stays positive. The whole family gets that strength of fighting the odds. So my mother has been extremely positive. कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, she'll always say कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. So you should always be extremely positive as a mother. तो आप पूरी एक फैमिली यूनिट को सुधार देते हो. तो and always keep taking efforts for your kids because it's a matter of time your kids will fly away. They will move out. So जब तक बच्चे पास में हैं उन्हें बहुत प्यार दीजिए, उन्हें बहुत कुछ सिखाइए and always stay अगर कुछ नहीं और कर सके तो stay positive in front of them. वही उनके लिए बहुत बड़ा strength हो जाएगा. What role do you think that community and support systems play in promoting mental wellness? Extremely important role. I think family, first unit is your family. It is the biggest unit that plays a role in your mental health journey, and then community also. But community you cannot change, you can change yourself, right? So आई थिंक इसमें हम दूसरों को नहीं बदल सकते, तो हम ये सोचेंगे कि हम बदले हमारे साथ में जो हमारे साथ फैमिली में लोग हैं, हम उनसे हमेशा एक एनकरेजिंग टोन में बात करें, हम हमेशा उनसे स्ट्रेंथ गिविंग टोन में बात करें कि बिकॉज दे शुड नॉट बी स्कैर्ड कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो हमसे आके बात ना कर पाए. तो हमें एज अ फैमिली पर्सन हमारी फैमिली के लिए बहुत ही पॉजिटिव रोल मॉडल बन के रहना है. जैसे मेरी मॉम का एग्जांपल दूंगी बहुत ही शॉर्ट में कि माय मॉम, मेरा तो लॉस था कि आई लॉस्ट माय ब्रदर एंड सिस्टर बिकॉज बट शी लॉस्ट हर किड्स, राइट? शी लॉस्ट, उन्होंने तो अपने बच्चे खोए थे, बट मुझे स्ट्रेंथ देने की जरूरत नहीं पड़ी. शी वॉज द वन हु वाज गिविंग मी स्ट्रेंथ ऑल द वाइल, कि वो मुझे हमेशा हिम्मत देती थी कि ठीक है जो चला गया वो जाना ही है, जो आया है वो जाएगा ही, बट वी हैव टू स्टे पॉजिटिव. पीछे हमें पॉजिटिव रहना है, पीछे हमें खुशी से हमारी जिंदगी जीनी है. बहुत लोग ये करते हैं कि घर में एक इंसान चला गया तो अपनी भी लाइफ जीते जी खत्म कर देते हैं. हम अब अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम मिठाई नहीं खाएंगे, या हम अब बाहर घूमने जाएंगे, बट नो, दैट यू आर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल. एज अ फैमिली पर्सन आपने किसी भी, तो बहुत बड़ी बात होगी डेथ, किसी भी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी आपने बहुत ही लेट गो वाला एटीट्यूड रखना चाहिए. तो आपके जो घर में दूसरे लोग हैं वो भी देखते हैं कि नहीं, कोई भी चीज को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, लाइफ आगे बढ़ सकती है. नो मिस्टेक इज बिगेस्ट, नो प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड नो पनिशमेंट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट. हर चीज के बाद आप आगे और बेटर कर सकते हो. क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि देखो जो चला गया वो तो चला गया, Correct. तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो हमारे सामने है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है, उनके लिए तो हमको जीना है. करेक्ट. तो आप किसी के जाने के बाद आप खुद जीते जीते खत्म कर दोगे खुद को, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल यू आर सेटिंग फॉर अदर्स इन द फैमिली. तो आपको तो बहुत पॉजिटिव रहना है एज अ फैमिली यूनिट, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और हमेशा ये दिखाना है कि नहीं, जिंदगी यही कितनी भी प्रॉब्लम के बाद में और वापस अच्छी हो सकती है. आज आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जो भी मेरे सामने आके बैठा है, कोई भी हर एक इंसान है, मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. थैंक यू सो मच रुचि फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग स्टोरी, फॉर इंसाइटफुल सेशन एंड फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. आप स्पेशली आए, काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक इंटरव्यू लेना है आपका, और जिस दिन आपने फिर से प्रेसिडेंटशिप लिया तब से मैंने सोच के रखा था कि नहीं अब तो लेना ही है. एंड टुडे फाइनली यू आर हियर. आई एम सो ग्लैड. We had a wonderful session. The pleasure is all mine. आपके साथ रहना ही अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. So the pleasure is all mine. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.